Very good morning students, welcome to our class of mathematics. In this video, we will see the part 2 of the chapter perimeter and area, that is the class 7 mathematics and chapter number 11. Right, so in the last class, we have discussed about the example number 1 and 5 and you were able to solve the exercise 11.1 and I hope you have done it successfully. Now we will see the another part of this chapter, that is about the area of parallelogram. Area of parallelogram. So first of all, I want to show you what is exactly the parallelogram. So you can see that I have taken the example number 6 in which the one diagram of the parallelogram is given. You know that parallelogram is also quadrilateral like the square and the rectangle. जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है which is made up of the four sides and the opposite sides are parallel to each other. यहाँ पर आप देख रहे हैं, suppose if I give it the name A, B and C, D. So you can see that AB is equal to DC and it is equal and also parallel to the DC, and AD that is parallel to BC, and this is the reason because the opposite sides are parallel or equal to each other, we can call it as the parallelogram. But what is here in this question, we have to find the area of the parallelogram. राइट, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है एंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है. सो एज यू कैन सी दैट द साइड ऑन विच द पैरेललोग्राम इज स्टैंड, यानी कि ऐसी साइड जिसके ऊपर पैरेललोग्राम टिका हुआ है या खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं दैट इज द बेस. Right, that is the foundation. So you can see that DC, that is the base of the parallelogram ABCD, and you can see this is the height, this is the vertical height. हम इस हाइट को यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर AB और DC ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को हम हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक आइडिया ऑफ द पैरेललोग्राम, नाउ वी विल बी एबल to solve the area of the parallelogram. So first of all, we will learn about the area of the parallelogram. What is the formula? Area of parallelogram. The formula we can write base into height. Right? Base into height. ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है. जैसे आपने पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपने याद रखा. वैसे ही अब आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी याद रखेंगे जो कि होता है बेस इनटू हाइट. इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है. तो यहाँ पर हमको बेस मालूम है, बेस इज BC, so which is equal to 4 cm, and the height of the parallelogram, what is the height? The distance between the two parallel side of the parallelogram, that is the height. So here the height of the parallelogram is given 3. So we have to multiply 4 and 3 and we will get 12 centimeter square. एरिया जो भी होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. तो यूनिट हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पैरेललोग्राम का एरिया हमको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल चुका है एंड दिस इज द फाइनल आंसर. Right, so I hope you understood what is the parallelogram and how to find the area of the parallelogram. Now we will do the another example, example number 7. Now students, we will do the example number 7 and example number 7 आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इस पैरेललोग्राम में this is the base. Right, this is the base of the parallelogram and x is the height of the parallelogram and the base is given, that is 4 cm, right, and the area of the parallelogram is also given 24 cm square and we have to find the height of the parallelogram. It means that we need to find the value of x. So this is very simple question. Again we use the formula of the area of parallelogram. What is the formula of area of parallelogram? Right, that is base into height. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा, राइट. सो ये हो जाता है बेस इनटू हाइट. राइट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं b इनटू h, ऐसा भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो बेस हमको निकालना है, सॉरी हाइट हमको निकालना है, तो बेस हमको 4 दिया हुआ है और हाइट जो है उसको हम x मान लेते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पर हम वैल्यू क्या रखेंगे 24, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 24. सो इफ वी डिवाइड द 24 by 4, so finally I will get 6 centimeter, right. तो 6 centimeter that is the height of the parallelogram. तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. देखा आपने यहाँ पर हाइट आपको निकालना थी, बेस आपको दिया था, एरिया भी आपको दिया था and by simply putting the area of the parallelogram we can find the height of the parallelogram.
So I hope this is very simple question, right? And now we will do the example number 8. Now students, we will do the example number 8, and in the example number 8, what is the situation is given? We have ABCD is a parallelogram, right? And इस parallelogram में DC is the base which is equal to 6 centimeter and AD that is also the base that is 4 centimeter, right? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं the height of the parallelogram is 3 centimeter and we know that the height of the parallelogram that is equal to the distance between the two parallel sides. So as we know that AB is parallel to DC and the distance between that is 3 centimeter. So 3 centimeter is the height of the parallelogram and the base of the parallelogram is 6 centimeter. So we have to find the area, or we can say we have to find the height of the parallelogram. So first of all we have to find the area of the parallelogram, right? So यहाँ पर हम इस parallelogram को हम दो तरीके से देख सकते हैं, राइट? यहाँ पर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है कि जैसे कि अगर आप इस पैरेललोग्राम को इस तरीके से देख रहे हैं, राइट, इन दिस वे व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इस तरह मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर ये बेस होगा और ये हाइट होगा। लेकिन अगर इस पैरेललोग्राम को मैं वर्टिकली देखूं, इफ आई सी दिस पैरेललोग्राम फ्रॉम दिस बेस, राइट, सपोज हम इसको बेस को AD मान ले और यहाँ पर जो x होगी वो हाइट होगी, तो एग्जैक्टली हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इन द वर्टिकल वे, राइट? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले फाइंड करेंगे, राइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और यहाँ पर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में सबसे पहले DC को हम बेस मानेंगे और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, इसको मैं नाम दे देता हूँ BE, दैट इज द हाइट, इसको हम मान लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, सो बेस यहाँ पर हमारा 6 है और हाइट 3 है, so we get 18 centimeter square, that is the area of the parallelogram, right? 6 3 the 18 centimeter आ जाएगा। now अगर इस parallelogram का मैं vertical view से, यानी कि अगर इसको AD को क्या मान लूं, मैं बेस मान लूं और इसको हाइट मान लूं, तो पैरेललोग्राम तो हमारा एक ही है, इसका एरिया चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर मैं यहां से निकालूं अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मैं निकालूं तो वो होता है बेस इनटू हाइट, राइट? तो इस बार हम क्या करेंगे, बेस AD को मानेंगे। पहले हमने DC को बेस माना था, अब हम बेस किसको मान रहे हैं, AD को मान रहे हैं, और यहाँ पर हाइट किसको मान रहे हैं, दैट इज ऑफ द x, राइट? मान लो कि यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, दैट इज द BF, राइट? तो BF जो है इसको हम हाइट मान लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इट विल बी सेम इन बोथ द बेस, सो आई कैन राइट हियर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 4 एंड द हाइट दैट इज द x। तो यहां से हम x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, दैट इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम 18 डिवाइडेड बाय 4, और 18 डिवाइडेड बाय 4 हम जब करेंगे, सो 18 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, सो वी विल गेट द वैल्यू इन डेसिमल, सो 4 4 द 16, राइट, एंड 4 5 द 20। इस तरीके से यहां पर इसका डिवीजन हो जाएगा, तो 4.5 सेंटीमीटर दैट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर होगी। फिर से एक बार डिवीजन चेक कर लेंगे, 4 4 द 16, यहाँ पर कैरी कितना बच जाएगा, रिमेनिंग इज 2, एंड डेसिमल जब हम लगाएंगे सो इट बिकम 20 एंड 4 5 द 20, इट मींस दैट आवर आंसर इज राइट, द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 4.5 सेंटीमीटर, राइट? नाउ वी विल डू द एग्जांपल नंबर 9। Now students, we come to the example number 9, and in this example number 9 we do not talk about the parallelogram but we talk about the triangle, right? So as you know that triangle is not the quadrilateral because it is made up of the three sides, so there are two triangles are given in the question and we have to find the area of the triangle, right? तो area of triangle का formula हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, right? So area of triangle, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस triangle का जो नाम है that is PQR, right? देखते हैं, these are the vertices P, Q and R, these are the three vertices, right? तो ट्रायंगल का डेफिनेशन ये होता है कि ट्रायंगल वो फिगर होता है या वो शेप होता है जिसमें 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल्स भी दिख रहे हैं, राइट? बट यहाँ पर हम ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अभी यहाँ पर एंगल की बात नहीं करेंगे, इसलिए हम अभी यहाँ पर साइड्स और वर्टाइसेस की बात कर रहे हैं। तो हमारे ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, PQR, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट? तो बेस तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि यहाँ पर QR जो है वो हमारा बेस है एंड विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन इनटू द डायग्राम, एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस
एंड द वर्टाइसेस P, यानी कि यहाँ पर मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है वो हाइट है जो आपको फिगर में भी दिख रही है, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. सो सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला वी विल गेट द आंसर. सो दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, सो रिमेनिंग इज 4, 4 1 द 4, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो ट्रायंगल है PQR, इसका एरिया तो अभी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया. नाउ वी कम टू द सेकंड फिगर व्हिच इज गिवन इन दिस शेप, राइट. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डॉटेड लाइन भी देख रहे हैं. तो एक्चुअली हमारा जो ट्रायंगल है ओरिजिनल ट्रायंगल, वो हमारा कौन सा ट्रायंगल है, LMN. यानी कि इस चीज को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, राइट, इफ यू डू नॉट सी दिस, सो ओरिजिनल ट्रायंगल इज LMN, राइट. LMN जहां पर आपको बेस जो दिया है 3 सेंटीमीटर दिया, बट द हाइट इज नॉट गिवन. सो फॉर दिस ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड द एरिया एंड वी यूज द ट्रिक ओवर हियर. यहां पर हमने क्या किया है, इस L वर्टाइसेस से एक वर्टिकल लाइन बनाते हुए यहां पर एक परपेंडिकुलर बना दिया है, दैट इज द OL. OL is the perpendicular and we have joined this O to M, so we have get this triangle, right. यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो चुका है. और राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने यहाँ पर इसकी जो हाइट है LO जो दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है. So we can consider the LO as the height of this triangle and the base of the triangle is MN. यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये LMN का जो एरिया होगा वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस हमारा 3 है एंड द हाइट इज 2, राइट. सो 2 and 2 अगेन कैंसल एंड वी हैव गॉट द 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल. यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है. सो ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है. नाउ वी विल सी द एग्जांपल नंबर 10. Now friends, in the example number 10, the triangle ABC is given and the height of the triangle is 3 centimeter, but here we have to find the base of the triangle, right. And instead of that they have given the area, that is 36 centimeter square. So two data or the two information which is given about the triangle and we have to find the base of the triangle. So that is also again very simple question, right. तो यहाँ पर भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे. फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ट्रायंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ट्रायंगल का एक सिंबल यूज किया है, वो आप यूज कर सकते हैं. सो ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट, दैट इज गिवन 36 सेंटीमीटर. और यहाँ पर हमने देखा कि फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है. तो यहाँ पर 36 जो वैल्यू दिया है वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा एंड अगेन आई पुट द हाइट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द बेस, दैट इज BC. तो बेस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BC, राइट. और हाइट जो है हमारी 3 है, राइट. नाउ व्हाट आई कैन डू दैट, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे. 36 एज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 इंटू BC, राइट. यहाँ पर आप देखेंगे 3 1 जा 3, so 3 will come here and it become 3/2 and that is the BC. Now we have to cross multiply. हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. So this 2, that is the denominator of 3/2, it will multiply with 36 and this numerator will become the denominator. So it become like 36 into 2/3, that is equal to BC. ये BC के बराबर हो जाएगा. And we know that 36 is divisible by the 3 by 12 times. 3 1 the 3 and 3 2 the 6. And if I multiply 12 into 2, so it will give us 24 centimeter. That is equal to BC, and BC is the base. So we can say that the base of the given triangle is 24 centimeter. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. Now we will see the another example, example number 11. Now friends, we will do the example number 11 and example number 11 में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है. यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा ओरिजिनल जो ट्रायंगल है जिसका एरिया हमको यहाँ पर फाइंड करना है वो है हमारा PQR. एक्चुअली हमको PQR का एरिया फाइंड करना है. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं PL हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एंड PR जो है PR दैट इज द 8 सेंटीमीटर. यहाँ पर PR जो है ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमको 8 सेंटीमीटर दिया है एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं QR दैट इज द 4 सेंटीमीटर. सो जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 9 में एक क्वेश्चन इस तरह का किया था, तो यहां से हमको इसकी मेथड बिल्कुल आती है. तो हम सबसे पहले यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड करेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे
area of triangle PQR. Area of triangle PQR that is half into base into height, right? तो यहां पर हमको QM, एक्चुअली QM जो है वो एक्चुअली इसकी हाइट है. QM is exactly the height of this triangle, but the QM is not given. So here we use the imaginary line, imaginary perpendicular यहाँ पर डायग्राम में बनाया हुआ है L. तो इसी को हम इस ट्रायंगल की हाइट मानेंगे और यहाँ पर QR जो है इस ट्रायंगल का बेस है, तो उसकी वैल्यू हम हाइट के जगह पे या बेस की जगह पे रखेंगे. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो गया 4, और यहाँ पर हाइट जो है उसको हम 5 ले लेंगे. सो 2 1 2 2 2 4. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 2 10. तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. एंड इन द सेम वे दे आर आल्सो आस्किंग यू टू फाइंड द हाइट ऑफ द QM, यानी एक्चुअल जो ट्रायंगल की जो हाइट है QM इसकी लेंथ या हम बोलेंगे ट्रायंगल की हाइट को हमको फाइंड करना है. तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगेन वी कैन यूज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC PQR, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फिर से हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो बेस है इस बार हम क्या करेंगे, इस PR को बेस मानेंगे. द PR इज द बेस एंड यहाँ पर QM जो है दैट इज द हाइट. तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, बेस जो है वो PR है और हाइट जो है वो क्या है QM है, राइट. इस तरीके से हम फॉर्मूला पुट करेंगे. तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपके लिए. तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमने कितना फाइंड किया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, राइट. और इसके बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे. तो जैसे आपने देखा PR कितना है 8 है और एग्जैक्टली हमको क्या फाइंड करना है, QM फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द QM. तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 8 कैंसिल हो सकता है. 2 1 2 2 4 8, राइट. सो QM इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10/4, राइट. ये जो 4 होगा वो 10 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो QM कितना हो जाएगा, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. 4 2 8, राइट. रिमेनिंग इज 2 एंड इफ वी पुट द पॉइंट सो इट बिकम 20. So 4 5 20. So 2.5 सेंटीमीटर दैट इज एग्जैक्टली QM. तो यहाँ पर आपने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमने फाइंड कर लिया एंड बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल PQR. ठीक है. तो QM भी यहाँ पर जो है वो हाइट हो गई, तो इसको हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया. So this is the final answer of the example number 11. And after solving this example about the parallelogram and the triangle, you will be able to solve the exercise 11.2. And just try that exercise. That is very interesting because parallelogram and the area of triangle, that is very easy concept as like the perimeter of rectangle and the square, right? So I hope you will be able to solve the exercise 11.2. So best of luck for that exercise and solve it, practice it, revise it, enjoy the mathematics, and thank you for watching this video. Have a nice day.